In this session, we will go with the topic as per syllabus, and as per syllabus, we have next topic, that is iron carbon diagram. Okay, in under engineering material subject, we have iron carbon diagram. Okay, so I'm always I have always said that I'll try to cover the part which is prescribed in this syllabus. Okay, so as per syllabus, we have only this details of iron carbon diagram and the microstructure observations from iron carbon diagram. Okay, so I can tell you from this topic that we have only this diagram only. uh, Give me a second. Okay, so as per syllabus, we have only this diagram. Okay, but as you can see in this diagram, we have number of details here, number of lines here, number of details here, number of different alloys here, like low carbon steel, cast iron. Okay, number of different microstructures here, austenite, ferrite. There are number of details here. Okay, so to understand these different detailings, okay, so understand this these different lines, okay, we should firstly have to cover number of some small topics. Okay, like what is cooling curve, what is phase diagram, okay, and how these cooling curves and phase diagram constitutes this iron carbon diagram. Okay, so firstly we will try to cover this cooling diagram and phase diagram quickly. Then after we will proceed to this iron carbon diagram. Okay, so I'm again saying that we are going according to the syllabus prescribed by board. Okay, so we just have to have knowledge about these two topics, cooling curve and phase diagram. Okay, and as per syllabus, we have this details of iron carbon diagram and this microstructures only. Okay, so let's have this quick knowledge of cooling curve and phase diagram. Okay, so what is this cooling curve? Cooling curve, as you can see from this page, that a cooling curve is a line graph that represents change of phase of matter from typically from gas to gas to solid, or liquid to solid. Okay, so what it means, that a cooling curve represents the change in phase. Change in phase of matter means it represents change in phase. Means if assume that one material, let's take a simple example, like of we can say a metal, iron. Okay, consider it is at high temperature. We will start this point. Okay, at time 0. Okay, so as per this diagram, in a y direction we have this temperature, and in x direction we have this time. Okay, so at time 0, it is at higher temperature. Okay, let's take this point A. Okay, after some time, when it is open to the surrounding, which is at a lower temperature, its temperature starts decreasing. Okay, up to point this point B. Okay, from this A point to B point, it is in solid state. At point B, it start from point A to B, it is in liquid state. Okay, then after this point B to C, let's assume this point C. Okay, from B to C, it will start changing its phase. It will start changing from liquid to solid phase. Okay, and this phase is called thermal arrest, because temperature is constant here. Temperature is constant here. Okay, then after this point C to D, again it will start changing its it will start decreasing its temperature, and this point C is the last point where it is said to be in liquid. Okay, so then after this point from C, it is changed to the liquid. Okay, so we can summarize here, from A point to B point it is in liquid state, from B point to C point it is in liquid plus solid state,
from this C point to D point is in solid state. Okay, so this type of curve which shows that how a material cools from one phase to another phase with time. Okay, so cooling curve on, we can summarize here, just it is just a diagram or a which shows, or a graph which shows how material or metal is cooled with time. Okay, so तो कूलिंग कर्व क्या है, जो सिंपल ये बताता है हमें कि कोई अगर कोई एक मटेरियल हायर एलिवेटेड टेम्परेचर में है, किसी एक फेज़ में है, और वो हम उसे हम कूल कर रहे हैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर जो कि ठंडा है, तो क्या होगा, वो थोड़े टाइम बाद वो उसका अपना टेम्परेचर ड्रॉप होता रहेगा, कम होता रहेगा, और क्या होता रहेगा, वो सॉलिड होता रहेगा। ओके, सॉलिड होता रहेगा, फिर क्या होगा, बिल्कुल जब टाइम ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, बिल्कुल सॉलिड स्टेट में चेंज होगा। सो मतलब एक ग्राफ हमारा प्लॉट हुआ है होता है, उसी ग्राफ को हम बोलते हैं कूलिंग कर्व। ओके, फॉर एग्जांपल हम जैसे फेज चेंज के बहुत हम एग्जांपल ले सकते हैं। सिंपल तो हमारा कास्टिंग का होता है, कास्टिंग सपोज गर्म मेटल है आपका, लिक्विड स्टेट में है, अब वो फेज़, अब वो हम बाहर रखेंगे, हवा में रखेंगे, तो धीरे धीरे वो ठंडा होगा, ठंडा होगा तो वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाता है। ओके, तो किस तरह जाता है वो, पहले वो जाता है इस तरह, इसका टेम्परेचर डाउन करता है, स्लांटिंग लाइन होती है। ओके, फ्रॉम, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ए टू बी स्लांटिंग लाइन होगी। ओके, यहाँ पर लिखा भी देखो, पोरिंग टेम्परेचर और दिस इज कूलिंग रेट। ओके, फिर एक फेज चेंज जगह आती है, फेज चेंज वाली पोजीशन आती है जिसे हम थर्मल रेस्ट बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि फेज जहाँ जब चेंज होता है आपका, जैसे पहले लिक्विड था अब सॉलिड, तो एक ऐसा टाइम आता है बीच में जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और टाइम के साथ वो उसी टेम्परेचर में रहेगा, और लास्ट में जाकर वो एट दिस पॉइंट जिसे हमने सी कहा था, वो टोटल कन्वर्ट किस में हो रहा है, सॉलिड में, और इसके बाद वो सॉलिड ही है। ओके, सो इस तरह का जो हमारा कर्व बनता है वो हमारा कूलिंग कर्व बनता है। तो ये जो कूलिंग कर्व है ये अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग होता है। जैसे हम यहाँ पर हम डिटेलिंग अगर आपने, अच्छा ये जो हमारा थर्मल रेस्ट है ये क्या है, लेटेंट हीट, इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, यहाँ पर क्या है, इसने लेटेंट हीट ये एनवायरनमेंट को दी है, इससे हमने हीट ली है इस मटेरियल से, तब ये ठंडा हुआ है। बट ये पोर्शन हमेशा जो होता है एक प्योर मेटल के लिए, प्योर मटेरियल के थर्मल रेस्ट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ओके, और इसका रीज़न भी है कि ये कांस्टेंट क्यों रहता है, यहाँ पर रीज़न दिखाया है, दिस इज बिकॉज मैटर हैज़ मोर इंटरनल एनर्जी एज लिक्विड और गैस देन दी स्टेट इन दी कूलिंग टू। मीन्स टू से यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स जो लिक्विड से सॉलिड में आ रहे हैं वो अपनी हीट छोड़ेंगे, तभी उसे हीट रिकवर करनी पड़ेगी। अब वो जो हीट कई बार छोड़ते हैं तभी तो सॉलिड बनेगा, बट वो जब वो हीट छोड़ते हैं वो हीट कई बार सराउंडिंग के पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो साथ वाला जो सॉलिड पार्टिकल है वो लिक्विड हो जाता है, तो नेट जो टेम्परेचर था वो सेम रहता है। तो इस तरह एक बैलेंस क्रिएट होने लग जाता है। ओके, सो यहाँ पर टेम्परेचर वो कांस्टेंट होता है। ओके, बट विद टाइम वो क्या होता है, फाइनली वो कन्वर्ट हो जाता है पूरे सॉलिड में। ओके, सो एक प्योर अलॉय के लिए यही आपका फिनोमेना रहता है, एक स्लांटिंग लाइन रहेगी, फिर एक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, फिर देन आगे नीचे आएगा। ओके, सो दिस इज कूलिंग कर्व। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कूलिंग फॉर प्योर प्योर मटेरियल और प्योर मेटल। ओके, जैसे मैंने ऊपर कहा कि फॉर प्योर मेटल इट इज़ क्या होगा, कूलिंग कर्व क्या होगा, एक तरफ टेम्परेचर लाइन होगी, एक तरफ टाइम की लाइन होगी, और आपका यहाँ पर एट टाइम ज़ीरो जब बिल्कुल स्टार्ट किया हमने, हायर टेम्परेचर पे आपका मटेरियल है, उसका धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम हुआ और एक लिक्विड फेज तक आया। अब यहाँ फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू बी इट इज़ लिक्विड, फ्रॉम बी टू सी ये फेज चेंज करा है, यहाँ पर लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होगा, यहाँ लिक्विड भी होगा, यहाँ से बी टू सी में, ये सपोज दिस इज ए बी सी एंड डी, तो यहाँ बी टू सी क्या है, यहाँ लिक्विड भी होगा सॉलिड भी होगा। अब यहाँ पर पॉइंट सी में आके ये पूरा क्या हो चुका है, देखो सॉलिड फेज में आ चुका है, और इसके आगे फर्दर ये क्या है, पूरा सॉलिड रहेगा। ओके, सो कूलिंग कर्व फॉर प्योर मेटल, slanting line, then constant line, constant temperature line, then again slanting line. Okay, but for example, let's take an example of this cooling curve of 100% copper. कॉपर का हम 100 जो प्योर एक मटेरियल है, इसमें कोई अलॉय नहीं है, इसका कूलिंग कर्व समझते हैं। ओके, जैसे आप एग्जांपल देख रहे हो, अब कॉपर का क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट
क्या रहता है, राउंड अबाउट रहता है 1000, जैसे ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 लिखा है, इट मीन्स 1000 डिग्री, 1100, 1200, 1300, 1400 एंड 1500 डिग्री सेल्सियस। टाइम बताया गया एक तरफ एक्स एक्सिस में। अब जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है कॉपर का, मेल्टिंग पॉइंट होता है कॉपर का, वो होता है राउंड अबाउट 10,000 और 1100 के बीच, ये लाइन दिखाई गई है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 1516 के, जो कि ये लाइन दिखाई गई है। बट आयरन में ऐसा नहीं होता, आयरन का बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ पर सिर्फ लिक्विड स्टेट ही बताई होती है। अब जैसे हम यहाँ पर एक देखो कांस्टेंट लाइन है, तो इससे ऊपर क्या होगा, यहाँ पर ये जो कांस्टेंट लाइन है देखो, यहाँ नीचे ये एक मेल्टिंग पॉइंट से भी ऊपर बताया गया है। मेल्टिंग पॉइंट से मतलब बताया गया ऊपर, मतलब सॉरी बॉइलिंग पॉइंट से भी ऊपर बताया गया है। 1500 मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और 1100 के पास यहाँ ये हुआ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होना, बॉइलिंग मीन्स गैसियस फॉर्म में आ जाना। तो 1500 ऊपर गैसियस फॉर्म में था, फिर एक कांस्टेंट लाइन आई, मतलब यहाँ फेज चेंज हुआ, तो ये कांस्टेंट लाइन बता रहा है क्या होगा, इसमें दोनों फेज होंगे। कांस्टेंट लाइन मतलब दोनों फेज, जैसे कि यहाँ था ऊपर वाली लाइन में, यहाँ पर क्या था, इसके दोनों के बीच यहाँ ये यहाँ से लेके ये पूरे लाइन यहाँ था लिक्विड, और इससे नीचे की लाइन थी पूरी सॉलिड, तो बीच का पोर्शन क्या हुआ, लिक्विड प्लस सॉलिड। ओके, इन द सेम वे अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इससे ऊपर वाला फेज है गैस, और इससे नीचे वाला क्या है आपका लिक्विड फेज। तो ये बीच का जो कांस्टेंट, वो यहाँ पर, अब मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, इसको जूम करके बताते हैं आपको। सो बीच का ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर गैसियस प्लस लिक्विड स्टेट होगा। ओके, फिर जब ये पॉइंट आ गया यहाँ टोटल लिक्विड में आ गया, यहाँ टोटल लिक्विड में आ गया, अपॉन कूलिंग विद टाइम, टाइम जैसे हमने दिया इसे और कूल होने दिया, टेम्परेचर ड्रॉप होता रहा, ड्रॉप होता रहा। इसलिए देखो यहाँ पर जो ये आपका फ्लास्क है, इसमें भी लिक्विड स्टेट में बताया गया है। ओके, जब ये 1100 के आसपास रहा, जहाँ इसका मैंने बताया कि आपका इसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, हम इसे फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पर ये सॉलिड बनना थोड़ा स्टार्ट हो गया। इसीलिए इसको क्या दिखा, देखो थोड़े पार्टिकल्स इसे सॉलिड लग गए हैं बनने। ओके, तो अगेन ये क्या होगा, देखो प्योर मेटल केस मैंने बताया कि कांस्टेंट लाइन होगी, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन होगी, सीधी लाइन होगी। तो इस लाइन में क्या होगा, लिक्विड भी होगा, यहाँ लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होगा। देखो जैसे ये डायग्राम में दिखाया है, यहाँ लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। लास्ट में जाके ये क्या है, सॉलिड में टोटल कन्वर्ट हो गया है, और इसके नीचे सॉलिड ही रहेगा, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया, देखो ग्रेन्स की फॉर्म में क्रिस्टल बताया गया। ओके, so this is very good example for having information regarding cooling curve for pure material or pure metal. Okay, pure metal. Okay, it is also written here, remember this only happens for pure metal, है ना। प्योर मेटल के लिए आई थिंक यहाँ तक आपको लग गया होता है। प्योर मेटल के लिए क्या होगा, स्लैंडिंग लाइन, यहाँ तक लिक्विड फेज है, फिर लिक्विड प्लस सॉलिड फेज होगा दोनों, फिर अगेन यहाँ सॉलिड और नीचे तक सॉलिड रहेगा। ओके, जैसे कि यहाँ क्या है, तो यहाँ से ये इस लाइन से लेके यहाँ तक, सपोज दिस पॉइंट ए बी सी एंड डी, तो ए से लेके बी तक क्या है लिक्विड, बी से सी क्या है लिक्विड प्लस सॉलिड होगा, जो कि ये डायग्राम में भी है, और यहाँ से नीचे क्या है आपका सॉलिड रहेगा for pure metal. Okay, so now we will go into we have another a good example here, because heat treatment is mostly related with it is related with all the metals, but we have to focus on iron product. Okay, so one more good example for pure iron is for cooling curve is pure iron here. Okay, so as you can see from this diagram, we have cooling curve for pure iron. Okay, so let's assume that at time 0, and it is at high temperature 15 round about 1600 डिग्री सेल्सियस. ओके, 1600 डिग्री में क्या होगा, अब आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जब वो लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाता है, वो होता है 1536 के ऊपर वो क्या होता है, 1536 के ऊपर वो लिक्विड होता है. ओके, सो वो लिक्विड था, देखो यहाँ पर, यहाँ से लिक्विड जैसे ही 1536 पहुँचा, अब उसका वो लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट है, वहाँ पर फ्रीज भी होने लग जाएगा. वो मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम किसी चीज़ को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम लिक्विड को ठंडा कर रहे हैं सॉलिड में तो हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे. पॉइंट सेम है. ओके, सो अब जब ये हमने इससे ठंडा किया
तो यहाँ पर आके क्या होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, ओके। अब सपोज ये हमारा पॉइंट है ए, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं अगर हमारा कुछ हुआ क्लिप आर्ट, ओके। दिस वन इज टेक्स्ट बॉक्स, लेट्स से दिस इज ए, oh guys it is not working here, okay. Let's assume this is point A, okay. So again A to B is what, liquid. B से C क्या होगा, अब मैंने बताया कि जब फेज चेंज प्रोसेस होती है वो सीधी लाइन होगी और इसमें दोनों फेज हो गए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, लिक्विड। अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, लिक्विड प्लस सॉलिड, ओके। फिर फर्दर नीचे को आया, ये क्या है, सॉलिड रहेगा, आपको बताया मैंने। अब बात आती है कि फिर से क्यों कांस्टेंट आ गया। अब मैंने क्या कहा, मैंने आपको पिछली वीडियोस में कहा गया है कि अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सॉलिड बना, ठीक है। अब ये कैसा सॉलिड बना है, बॉडी सेंटर्ड आयरन, बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल है। यहाँ पर जो सॉलिड बना वो कैसा क्रिस्टल है, बॉडी सेंटर्ड। इसमें एटम्स कॉर्नर में तो है ही, साथ में एक सेंटर में भी, ओके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है, इस टेम्परेचर में आके 1400 के आसपास ये फिर से फेज चेंज में कर रहा है, क्योंकि इस टेम्परेचर के बाद देखो नीचे कौन सा स्ट्रक्चर है, फेज सेंटर्ड। इसमें मतलब कॉर्नर में तो होंगे साथ में फेसेस में होंगे। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर क्रिस्टल में फ़र्क है तो हम उसे अलग अलग फेज देंगे। तो मतलब यहाँ कुछ और फेज है और नीचे कुछ और है। तो फेज चेंज जब भी प्रोसेस होगी प्योर मेटल की, मैंने क्या कहा है कि वो क्या होगी, कांस्टेंट टेम्परेचर की होगी। तो बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन आई, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर क्या होगा, अल्फ़ा भी हो, ये कौन सा, इसे BCC बॉडी सेंटर्ड को क्या बोल दिया हमने, ये डेल्टा लिख दिया हमने, ठीक है। और नीचे वाले फेज़ को क्या लिख दिया, गामा लिख दिया हमने। तो मतलब यहाँ पर है अल्फ़ा, जैसे यहाँ लिखा है, और इससे नीचे है गामा। तो बीच में यहाँ पर क्या होगा, ये जो छोटा सा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है हमें, ये पोर्शन जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कैसा होगा, अल्फ़ा प्लस गामा, ओके। यहाँ पर होगा अल्फ़ा गामा, क्योंकि ये दोनों अलग फेस हैं, क्योंकि इनके क्रिस्टल अलग अलग हैं। मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि अगर आपके उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो वो अलग अलग फेजेस हुए, और अगर फेजेस चेंज हो रहा है आपका एक प्योर मटेरियल के लिए, तो वो हमेशा थोड़ा कांस्टेंट टेम्परेचर का रहेगा, ओके। देन आफ्टर ये क्या हुआ, यहाँ तक 911 तक हमने देखा कि ये आपका सेम गामा ही जो आयरन है ये स्ट्रक्चर पोजेस कर रखता है, यहाँ तक हुआ। फिर इससे नीचे हम ऑब्जर्व किया कि ये अगेन अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, क्या होता है, फिर से BCC हो जाता है। BCC हो जाता है तो अगेन पहले गामा था अब अल्फ़ा हो जाएगा। देखो फेज चेंज हुआ, पहले गामा था अब अल्फ़ा, तो ये कैसे दिखाई देगा, अब फिर से अब कांस्टेंट टेम्परेचर दिखाई देगा। तो हमने कांस्टेंट टेम्परेचर से इसे दिखा दिया। तो ये जो बीच का पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कैसा हुआ, गामा प्लस अल्फ़ा होगा। ऊपर क्या है गामा, नीचे क्या है अल्फ़ा, तो बीच का ये पोर्शन क्या हुआ, गामा प्लस अल्फ़ा, क्योंकि ये ऊपर भी लाई कर रहा है नीचे भी, तो ये दोनों का मिक्सचर हुआ गामा प्लस अल्फ़ा। तब ये और नीचे अपॉन फर्दर कूलिंग ये क्या रहेगा, आपका टेम्परेचर इसका ड्रॉप होता रहेगा और ये बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा और रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, ओके। और भी इसमें चेंजेस होती हैं नीचे, फ्रॉम अप टू 700 डिग्री सेल्सियस ये क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। इसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, मैग्नेटिक बिहेवियर रहता है। 700 से लेकर 900 तक क्या होता है, फिर से पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ओके। 900 से 1400 तक मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ फेजेस हमें मिल रहे हैं। देखो अप टू 900 इज़ BCC, 900 से 1400 FCC, फिर 1400 से 1536 तक फिर से BCC, ओके। सो यहाँ पर हमारे ये हमने देखा, देखो जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं, वी कैन कंपेयर है कि आयरन में हमारे फेजेस अलग मिल रहे हैं जब हम उसे कूल कर रहे हैं इसके फ्रीजिंग पॉइंट से या मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, ठीक है। एक फेज़ मिला डाल्टा आयरन, फिर हमें गामा आयरन मिला, अल्फ़ा आयरन मिला, डिफरेंट फेजेस मिले हमें। फेजेस क्यों हमें अलग अलग बोला हमने, ऑल्दो ये सारे सॉलिड में ही है। देखो लिक्विड सिर्फ यहाँ तक था, ये लास्ट लिक्विड कहाँ तक था, यहाँ तक, इस पॉइंट तक, क्योंकि ये लिक्विड प्लस सॉलिड, इससे नीचे सॉलिड ये। बट क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग है, BCC यहाँ तक इतने से टेम्परेचर जोन के लिए BCC की फॉर्म में है, इतने से टेम्परेचर जोन के लिए ये FCC है, इतने के लिए ये BCC है अगेन। तो
अब क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग है तो हमने इसके फेजेस अलग अलग बोल दिया है। ओके, यहाँ पर अलग है, यहाँ अलग है और यहाँ अलग है। ओके, सो वी कैन समराइज हियर दैट फॉर प्योर मेटल it is again holding that concept that during phase change process for a pure metal, for a pure metal phase change process, for a phase change process for a pure metal, there is a it is a constant temperature process। ये कैसे रहेगी? constant temperature process रहेगी, जैसे कि यहाँ पर है। ओके, but we one thing, one point we have to discuss here, that we have not observed number of phases in copper। कॉपर की जब हम बात कर रहे हैं प्योर कॉपर की, यहाँ पर सिर्फ एक ही फेज़ है, सिर्फ सॉलिड लास्ट में, इसमें ना गामा बना है डेल्टा बना है। तो ये डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल भी। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल टू मटेरियल, मेटल टू मेटल। ओके, ये ऑब्जर्वेशन से ही हमारा कूलिंग कर्व बना है और ये भी हमारा ऑब्जर्वेशन से ही कूलिंग कर्व बना है। सो आयरन के लिए हमें ये ऑब्जर्वेशन रही आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो यहाँ प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी दी गई जो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में आयरन कार्बन डायग्राम में डिस्कस करेंगे। ओके, सो